Watch this short video where we, as a group, help fellow CAs and lawyers understand GST queries, notices, and possible solutions. A collaborative way to grow your GST litigation practice, because learning together is always better. A new client is working with, is giving services to Sony Japan. In April 25, he came to us and he told as if it was like local services. So we took the and previous year also he had not taken registration, though it was above the limit of 20 lakh. So we took a composition dealer scheme and we calculated the tax in April 25 and paid including the previous year also in the April 25. नहीं अरविंद जी शुरू से there is a composition dealer in India. Yes, April 25 registration taken. And before April 25 he was unregistered person. Correct. Unregistered person, from when did he start the business? He had started 2024 only, but he had not taken GST registration. Okay, so for let us assume from 1st April 2025 he took the registration. For whole 2024, that is for 1 year, he did not take the registration. Correct. But he was providing the services to Japan. Yes, sir. When did his limit exceeds 20 lakh? Somewhere in the middle of 24 only it has exceeded. Okay, let us assume on 1st October 2024, his turnover exceeded 20 lakh. 20 lakh. And after a gap of 6 months, he took a registration, correct? Yes, sir. And in between these period, did you pay any tax? Yes, sir. We paid tax with interest calculating from 24 only, and we paid under composition. C plus S from here to here. Yes, sir. And the services which you were providing was all export services. Correct. But what because just a minute. You were providing export services. So even if you have now from 1st April 2025, you have taken regular or composition? No. 1st April 25, we took composition. Based on his explanation, we thought it is a local service. Okay, from 1st April 2025, you took a composition registration only. Okay. And but you were providing export services. वो हमें मालूम नहीं था. Documentation was not. तो पूरे 2024 में भी आपने C+S दिया? हाँ, पूरे अभी तक C+S दिया. आज सितंबर हो गया है, इसमें भी आप C+S ही दे रहे हैं, करेक्ट है ना? करेक्ट. अब अगर अभी क्या हुआ, we verified all the, because liability was coming huge, he was telling how to avoid and all. Then we did a thorough verification. We found out that it is export of service, and we asked him to get FIRC also. He got FIRC copy also. Okay. It is mentioning export of software services. Export of software services. Okay. I hope they are coming in intermediary. Export of software services, sir. Direct. ठीक है. Intermediary नहीं है. वो ठीक है. Export of services. So now we converted it into normal registration and took this LUT for 25-26. Okay. So question is, now whatever we have paid, whether we can claim it as refund, and whether what is paid considering 24-25 also, can it be claimed as refund, is the question. Look, if we think that it is a evasion of tax from 2024, तो ये इवेजन ऑफ टैक्स बनेगा या नहीं बनेगा? क्योंकि अगर आप इसमें रेगुलर भी ले लेते और यहाँ पर एलयूटी फाइल कर देते आप, तो भी आपका इनवर्ट सप्लाई कितना है, रिफंड कितना बनता है? इनवर्ट सप्लाई नहीं है सर, कुछ भी नहीं है. तो मतलब आपको रिफंड नहीं चाहिए था, सिर्फ टैक्स जीरो बन रहा है. टैक्स जीरो बनाने का है ऑब्वियसली. तो अगर आप यहाँ पर रेगुलर का रजिस्ट्रेशन लेके भी और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस करते हैं, एलयूटी फाइल करते हैं, तब भी टैक्स जीरो बनता. तो क्वेश्चन ऑफ इवेजन ऑफ टैक्स डज नॉट अराइज. Okay. Now the next question is whether there is a violation. Yes, there is a violation of you were liable to be registered, but you did not take the registration. पहले सर्विस टैक्स में ऐसा था सर, इफ यू आर गिविंग प्योरली एक्सपोर्ट सर्विसेज देयर वाज नो नीड फॉर रजिस्ट्रेशन आल्सो. करेक्ट. तो सेक्शन 125 का वॉल्यूशन में मैक्सिमम 25,000 का पेनल्टी लगा सकता है. इससे ज्यादा क्या करेगा? 25 + 25. ओके. अब नाउ द थर्ड क्वेश्चन कम्स. द फर्स्ट इज देयर इज नो इवेजन ऑफ टैक्स. सेकंड, the maximum penalty under section 125
of 50,000 and the third whether you will get the refund or not. सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस ही है, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया कहाँ है? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में तो प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया होना चाहिए ना, वो है तो फिर वो हाँ, उसमें क्वेश्चन करेंगे ना तो हम लोग कहीं और चले जाएंगे। लेट अस, अरविंद जी कह रहे हैं एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, तो उसको मान के एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस करके ही डिस्कशन करते हैं। अब कहानी यह है कि वेदर दिस पर्सन विल गेट द रिफंड और नॉट। देखिए कंपोजिशन है तो अपने ही पॉकेट से दिया है। यस सर। अगर अपने ही पॉकेट से दिया है तो डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट भी नहीं लगने वाला है। दूसरी बात यह कि आई लगना चाहिए ना, C+S कहाँ लगने चाहिए, इसीलिए तो रिफंड मांग रहे हैं। आई भी नहीं लगेगा क्योंकि एलयूटी फाइल होता है। अब वो रिफंड को डिनाई करने के लिए क्या कह सकता है कि 24-25 में आपने एलयूटी फाइल नहीं किया, आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए था। कंपोजिशन डीलर इंटरस्टेट सप्लाई कर सकता है सर? अरे नहीं कर सकता, वही तो हम लोग बोल रहे हैं, उसी का रिफंड मांग रहे हैं अमित जी कि कंपोजिशन डीलर इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकता, हमसे गलती हो गई, हमने C+S पे कर दिया, अब इसका रिफंड दे दीजिए आप। वही तो कह रहे हैं हम लोग। जी आपसे पूछा था कि C+S लगेगा कि आई लगेगा, क्या आपने पहले से ही बोल दिया कि कंपोजिशन में चले जाओ? नहीं, आप फिर से, मैं पूरा केस में दोबारा समझा देता हूं। यहां पर एक बंदा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहा है, यहां से शुरू किया एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, और वो कंपोजिशन डीलर में रजिस्ट्रेशन करवा के एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहा था, गलत कर रहा था। इसको कोई कंसल्टेंट मिला नहीं जो इसको बता पाए कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है। जब इसको यहां पर पता लगा कि एक्सपोर्ट ऑफ और सर्विस है, कैसे पता लगा? जब इसका ये लायबिलिटी भी बहुत ज्यादा आने लगा, तब अरविंद जी ने चेक किया और कहा कि ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है, आपको तो कंपोजिशन डीलर में होना ही नहीं चाहिए। तो इन्होंने तुरंत इसको रेगुलर में कन्वर्ट किया और एलयूटी फाइल कर दिया 25-26 के लिए। अब अरविंद जी का बड़ा सिंपल सा सवाल है, इस पीरियड में जो गलती हो गई है कंपोजिशन डीलर्स में रजिस्ट्रेशन लेके, और जो जीएसटी C+S में जमा हो गया है, क्या उसका रिफंड मिल सकता है या नहीं मिल सकता? तो हम लोग का ये निष्कर्ष ये निकल रहा है, या फिर डिस्कशन में ये बातें आ रही है, क्या इस पीरियड में क्या इवेजन ऑफ टैक्स की पेनल्टी लग सकती है 122 की? तो हम लोग ये कह रहे हैं कि नहीं लग सकती है, क्योंकि अगर इसको इवेजन ऑफ टैक्स तो तब माना जाएगा जब वाकई में इवेजन हो, क्योंकि ये अगर एक्सपोर्ट और सर्विस तो है, ये तो फैक्ट है ना। हाँ जी, ये तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है। ये अगर रजिस्टर्ड होता और एलयूटी फाइल करता तो इसको टैक्स 0 देना होता। तो इवेजन ऑफ टैक्स तो नहीं है। अब लेकिन ही वाज लायबल टू बी रजिस्टर्ड, तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए था, और इसने रजिस्ट्रेशन कुछ पीरियड में, कंपोजिशन में भी बाद में रजिस्ट्रेशन करवाया, तो इस पीरियड में रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए था। तो क्या द पर्सन हु इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी? तो हम लोग ये कह रहे हैं 125 की मैक्सिमम पेनल्टी लग सकती है। तो ये सब तो मामूली सी चीज है, लेकिन अब सवाल ये उठता है, C+S जो उसने गलती से पे कर दिया, टैक्स 0 बनना चाहिए था। C+S एज ए कंपोजिशन डीलर उसके पॉकेट से टैक्स निकला है, क्या इसको रिफंड मिल सकता है? कहानी बड़ा सिंपल है। और ये इनवर्ट सप्लाई का रिफंड नहीं मांग रहा है, याद रखिएगा, इनवर्ट सप्लाई का रिफंड नहीं मांग रहा है, ये रिफंड मांग रहा है कि अगर मैं रेगुलर में होता, एलयूटी फाइल होता तो 0 टैक्स बनता, मैंने गलती से C+S दे दिया तो मुझे रिफंड दे दीजिए, मान लीजिए 10 लाख का रिफंड। इज इट पॉसिबल दैट ही गेट्स द रिफंड? प्रॉब्लम समझ में आ गया आप लोग को? सर उसको मेरिट पे केस चल सकता है, अपील स्टेज में 100% निकल जाएगा। ओके, एनीवन एल्स? एक बात बताइए सर। हाँ, फॉरेन एक्सचेंज आया ना, रजिस्ट्रेशन लेता, FIRC आ गया। नहीं रजिस्ट्रेशन लेता। हाँ, आप कह रहे हैं टैक्स 0 है, कुछ भी नहीं पे करना होता, हाँ, तो जरूरत क्या है इसको रजिस्ट्रेशन लेने की? क्योंकि 20 लाख से एक्सीड कर गया टर्नओवर। नहीं, 20 लाख से एक्सीड तो ट्रांसपोर्टर का भी हो जाता है। वो तो रिवर्स चार्ज में, इसलिए उसको कभी भी रजिस्ट्रेशन 23 में तो फॉल नहीं कर रहा है ना। एग्जेम्प्ट वाले को भी होता है, रिवर्स चार्ज लागू नहीं होता, 23 में छूट है। हाँ, वही कह रहा हूँ, और 23 में फॉल तो कर ये सर्विस एग्जेम्प्ट तो हुई नहीं ना? नहीं, ये सर्विस एग्जाम नहीं है एक्सपोर्ट। जब ये एग्जेम्प्ट नहीं हुई तो ये दलील टिकेगी कैसे? नहीं, एलयूटी फाइल होता तो एग्जाम था, मतलब तब 0 रेटेड सप्लाई था। करेक्ट, एलयूटी फाइल नहीं होता तो फॉरवर्ड चार्ज में आपको पे करना होता जेब से और रिफंड ऑटोमेटिक आता है। करेक्ट, ठीक, तो ये ऑप्शन तो तब पैदा होता है जब आप रजिस्टर्ड हो जाते। करेक्ट, और रजिस्टर्ड नहीं हुए तो आपने वायलेट तो कर दिया, तो रिफंड किस बात का? ओके। दूसरी बात, ये कह देना केवल 125 लगेगा, मैं भी इस पे सहमत नहीं हूँ। ओके, CS इस बेस पे इनवाइस जारी किया तो उसमें लिखा जापान को दे रहा हूँ। हाँ अरविंद जी, ये सवाल बताइए तो,
इनवॉइस जारी करके जापान लिखा उसमें। हाँ, यस सर, ही इज गिविंग टू जापान। तो प्रत्येक इनवॉइस पे वो पेनल्टी लगा सकता है। किस चीज का? सेक्शन 122 में है ना। नहीं, तो 122 में इवेजन ऑफ टैक्स है ना, तो इवेजन ऑफ टैक्स कहाँ है? सर इवेजन ऑफ टैक्स तो है ही है। ये एलयूटी का ऑप्शन तो तब मिलता है ना जब आप रजिस्टर्ड होते। आप तो रजिस्टर्ड ही नहीं हो, वो कहेगा आपको पे करके जमा करना था। ओके। जैसे हम एक पक्ष से सोच रहे हैं ना, हम ऑफिसर्स के पक्ष से भी तो सोचे इस चीज को। नहीं, बिल्कुल सोचना चाहिए। भाई छूट तो तभी मिलेगी ना जब मैं उस चीज का हकदार उसमें रजिस्टर्ड रहूंगा, तभी मुझे छूट मिलेगी, अदरवाइज मिलेगी नहीं। तो क्या ऑफिसर सेक्शन 77 लगा देगा? 77 क्यों जाएगा? वो 77 में तो उसको नुकसान हो जाएगा। क्यों? वो बोलेगा भैया आपको तो आई देना चाहिए था, आप C+S कैसे दे रहे हैं? नहीं, तब तो फिर अगर ऐसा लगा तब तो बल्ले बल्ले हो जाए। नहीं, फिर तो और नुकसान हो जाएगा, ब्याज की बात आएगी ना कुछ और आएगी। हाँ, तब तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। नहीं तो ब्याज की क्या होगा? C+S में जो है ना कि इनकरेक्ट इनवॉइस, फॉल्स इनवॉइस और मिस स्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट उधर जाएगा। नहीं राजेश जी, बल्ले बल्ले तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि C+S में कंपोजिशन डीलर में 1% दिया होगा, वहां 18% मांग रहा होगा। ठीक है, बल्ले बल्ले में ये है कि ब्याज नहीं देना। अरे 18%, अरे 17% जब डिफरेंशियल मांगेगा तो ब्याज व्याज छोड़ दीजिए उसको। सर मुझे एक बात बताइए, वो आपको रिफंड क्यों करेगा? हाँ, ठीक बात है। और ओपिनियन अभी जब का पैसा है ठीक है, बट वो क्यों रिफंड करेगा? मैं समझ गया आपकी बात, ऑफिसर क्या कहेगा समझ गया। बाकी और कोई? 1% जमा हुआ या 6% हुआ है सर? हाँ, 6%। ठीक है, तो 12% डिफरेंशियल। और किसी का कोई ओपिनियन? सर इन्होंने जब रिटर्न फाइल किया होगा तब उन्होंने रेगुलर सेल दिखाया होगा, एक्सपोर्ट सेल नहीं दिखाया होगा। हाँ, इसको लोकल दिखलाया है, करेक्ट, ठीक है, लोकल ही दिखलाया है। सर पेमेंट कैसे आ रहा था? US डॉलर में? हाँ, FIRC है, FIRC है। तो मुझे तो लगता है इसका सोल्यूशन सिर्फ रेट से होगा, क्योंकि अपीलेट अथॉरिटी कोई नहीं सुनेगा। ओके, कितना अमाउंट इन्वॉल्व है अरविंद जी? Around 3 lakh, 3 lakh. 3 लाख? 3 lakh tax is paid now. अच्छा, 3 लाख टैक्सेस पेड, तो आपको रिफंड 3 लाख का चाहिए। यस सर। और 12% डिफरेंशियल कितना बनेगा? डबल हो जाएगा ना सर, 6 लाख हो जाएगा। और हाँ, 1/3। ओके, एनी अदर ओपिनियन? जितेंद्र जी, कोई ओपिनियन है? रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा? सर मेरे हिसाब से तो ऑफिसर्स के पास कोई पावर्स नहीं है इसके लिए। ओके, इंक्लूडिंग फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी। रेट इज ओनली ऑप्शन। रेट इज बट ओनली। क्वेश्चन ये है कि नोटिस आई है कि वॉल्यूंटरी हम ये सब कर रहे हैं। वॉलंटरी सर, वॉलंटरी। पैसा गया है ना, लेने के लिए सोच रहे हैं बस। पैसा गया है, मतलब 3 लाख को तो मेरे हिसाब से तो 3 लाख भूल जाना चाहिए, और अब रेगुलर में जाके एलयूटी में लेके स्टार्ट करना चाहिए। वो तो स्टार्ट कर दिया सर बस तो नोटिस, क्योंकि कितना टर्नओवर है आपका? फर्स्ट ईयर वाज 34 लाख एंड नाउ इट हैज इंक्रीज्ड टू अराउंड 50 लाख। आपको लगता है नोटिस आएगी या ऑडिट आएगा? नहीं मालूम, नहीं अभी। वो तो आएगा जितेंद्र जी। रेट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, या तो रेट में जाओ या तो फिर सब भूल जाओ, जो आएगा तब देखा जाएगा। ट्रैवल कितना रुपए का अमाउंट है आपका, उस टोटल टैक्सेस वगैरह? सभी अभी 3 लाख पे किया सर बस। सर उसको समझा दो, इस झंझट से निकल जाओ, इधर ही खत्म करो। रिफंड तो बड़ा मुश्किल है, ठीक बोल रहे हैं आप। रेट के अलावा कोई ऑप्शन नजर नहीं। ये सब इधर का ट्रैवलिंग करना, उधर जाने का, पैसा देना, एरो टिकट का, सब मिलना कुछ नहीं, फिल्टर एक्सरसाइज है। लेकिन कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन अच्छा हुआ, कोई बात नहीं। बड़ा अमाउंट होता तो इसके बारे में, रेट के बारे में सोच सकते हैं। ठीक बात है। ये साहब कांगेरू पेट के पैर पे लात मार रहे हैं। क्या? अच्छा, सही बात है। जिनेश जी प्रोफेशनल, मतलब रिट में क्यों नहीं फायदा है? जाए रिट पे, अगर पार्टी तैयार है तो। क्यों आपको रिट में इसलिए भी जाना चाहिए, भले छोटा अमाउंट है। देखिए ये भूत नहीं गए तो कल जगेगा जरूर। रिट में नहीं गए तो ये हो सकता है डिफरेंशियल टैक्स के साथ पेनल्टी का भी नोटिस भेज दे। तो उससे बचने के लिए आपको रिट में जाना चाहिए। और ये भी हो सकता, देखिए सब कुछ का प्लस माइनस है, उल्टा भी हो सकता है। रिट में गए, अच्छा रिमांड बैक, ऑफिसर पता नहीं क्या क्या हो सकता है, गॉड नोज। ये FIRCS का जो अकाउंट में जो पैसे दिखाई देते हैं सर, अगर हम अकाउंट्स बंद कर दें तो क्या उसके बाद उसकी रिपोर्टिंग हो सकती है क्या? नहीं, एक बात बताइए, एलयूटी का जो प्रोविजन है वो सेक्शन में या रूल में है? एलयूटी का सेक्शन में नहीं है सर, रूल में है। और वो भी सर मैं बताता हूँ कि एलयूटी में भी रिलीफ दिया है हाई कोर्ट ने। हाँ, रिलीफ दिया है, करेक्ट। एक केस आए हैं
लेकिन उस समय वो रजिस्टर्ड था बंदा। हाँ, रजिस्टर्ड बंदा था, लेकिन अल्टीमेटली दे हैव टेकन द स्टैंड दैट देयर इज नो रेवेन्यू लॉस, देयर इज नो रेवेन्यू लॉस। हाँ, इसमें सबसे बड़ी बात है कि टैक्स इवेजन का केस नहीं बन रहा है, तो हो सकता है प्रोसीजरल लैप्स का ही लिया उन्होंने स्टैंड। ये प्रोसीजरल लैप्स है, माना कि आपका प्रोसीजरल लैप्स है, लेकिन इसमें रेवेन्यू लैप्स कहाँ है बताइए आप। डिपार्टमेंट कुछ नहीं बोल सकता था उस टाइम पे। हाँ, यहाँ भी इनके केस में भी रेवेन्यू लॉस तो जीरो ही है। हाँ, कंट्री को फॉरेन एक्सचेंज मिल रहा है, प्रोसीजरल लैप्स उसने नहीं किया, बस खाली इतना ही है। अरविंद जी लगा देगा जनरली, और क्या। यस सर, सोचिए क्या करना आपको अब। ठीक है सर।